अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। Today we will discuss about the third use of the dimensional analysis, that is the derive relationship among the various physical quantities। तो dimensional analysis का और एक use आता है जिसे हम relationship देखते हैं different types of the physical quantities। And today we will discuss about the limitations of the dimensional analysis। Stay with me, let us start what the third use of the dimensional analysis, that is the relationship between the different physical quantities। We can derive the expression for the physical quantity using the principle of homogeneity of the dimensions। बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम यूज कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इफ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, अगर हमें यह पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती, तो यहां पर एक एक्सप्रेशन दी गई है कि यहां पर एक derive the dimensionally the expression for the centripetal force acting on a particle of mass m moving with a velocity v in the circle of radius r। बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम यहां पर इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टिकल दिया गया है, तो वहां पर हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। जहां पर एक पार्टिकल का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो जिसका मास m है, वेलोसिटी v एंड द रेडियस r। दिस इज अ पार्टिकल under the centripetal force having the mass m, velocity v, radius r। we have to derive the relationship different फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहां पर हमें डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से जो यहां पर एक पार्टिकल है, इसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर घूमती है। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक्ट के बाहर जो एक वेलोसिटी होती है, एक फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and this is the centrifugal force and then this is the centripetal force. This is called as the centripetal force in the circular tract of the radius r। Here F is directly proportional mv। बच्चों हमें पता है according to the Newton's second law जो फोर्स होता है that is mass into acceleration, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है centripetal force की। So we say that F is directly proportional to the mv, where m is the mass of this particle, v is the velocity of this particle and r is the radius of this particle। ठीक है, in the circular tract, velocity of the particle r is the radius of the circle। So we say that F is directly proportional to the m a v b r c, or F is equal to k m a v b r c, where the a b c they are called as a dimensions a b c are the dimensions of this particle। ठीक है, तो यहां पर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहां पर यूज कर लेते हैं k। we have to use the k, एंड जो k होता है that is called as a dimensionless constant। ये k जो होता है ये constant होता है। we all know that the constants have neither dimensions। जो constant जो होते हैं constants के dimensions नहीं होते, they are the dimensionless। तो इनके जो dimensions आते हैं that is m0 l0 t0। ठीक है, dimensionless a b c are the dimensions of the mass, velocity and the radius of this particle। यहां पर जो आपका एक पार्टिकल है, ठीक है, a b and c ये dimensions आते हैं mass, velocity and the radius of this particle। write the dimensions of the equation first we get। बच्चों यहां पर F is equal to k m a v b r c। अब हम पहले इसके dimensions को लिखते हैं एम एल टी टी माइनस टू। वी नो दैट द फोर्स के जो डायमेंशंस आते हैं, ये नीट एग्जाम में आता है, दैट इज एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम ए, डायमेंशंस ऑफ एम ए, एल टी माइनस वन, वेलोसिटी एल, और के जो होते हैं दैट इज एम ए एल बी प्लस सी टी माइनस बी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई जब हम कर लेते हैं, पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द मास, लेंथ एंड टाइम वी गेट। यहां पर हमारे पास ए दैट इज 1, b plus c is equal to 1, call it equation second, minus b is equal to minus 2 और b is equal to 2। जब हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो b का वैल्यू 2 बन जाएगा। फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड b plus c is equal to 1, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, दैट इज c is equal to 1 minus b is equal to 1 minus 2 is equal to minus 1। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द ए बी सी इन द इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर जो ए बी एंड सी इनके जो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं के एम ए वी बी आर सी में। ठीक है, F is equal to k m v square r minus 1, और we say that F is equal to k m v square divided by r। तो यहाँ पर F is equal to k m v square divided by r। This is the required expression for the centripetal force of this particle। ये वो एक्सप्रेशन है जिसे हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं centripetal force of this particle।
तो यही क्या था डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज, जिसे हम वेरियस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की क्या लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने जो पार्टिकल दिया गया था एक सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स था, तो वहां पर एक फार्मूला एक्सप्रेस हुई, F इज इक्वल टू के एम वी डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल force of the dimensional analysis. Limitation of the dimensional analysis में जो पहला आता है, value of the constant cannot found by the using dimensional, it is found as the theory practical t। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट के वैल्यू जो होते हैं इसको हम डायमेंशनली फाउंड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि t is directly proportional to the L divided by G, t is equal to 2 pi under root of L divided by G। बच्चों ये फार्मूला सिंपल पेंडुलम के अंदर यूज होती है। जैसे हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज किया जाता है, ठीक है। वेयर t is the time period, that is 2 pi, that is 2 is a number, pi is also a number, L that is the length of the pendulum and the G is the acceleration due to gravity, that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला से सिंपल पेंडुलम में क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। T is proportional to the L by G, T is equal to 2 pi L by G, where 2 pi is a number. We all know that the numbers are the dimensionless. Numbers are the dimensionless. Pi का value that is 22 divided by 7. ये क्या है, इसके dimensions क्या आते हैं, that is M0, L0, T0. Dimensions cannot perform sign check। अगर हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम देखते हैं, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, दिस इज द राइट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मोशन। लेकिन यहाँ पर साइन की चेक जब हम कर लेते, दैट इज वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर साइन चेक, दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इसके बाद जब हम डायमेंशनल देखते तो LHS इज इक्वल टू RHS। थर्ड, इट कुड नॉट ऑलवेज चेक एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन चेक एक्यूरेसी जो इक्वेशन की होती है इसको ऑलवेज चेक नहीं कर पाता है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस जैसे tan थीटा इज इक्वल टू RG बाई V, tan थीटा की जो फॉर्मूला है दैट इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, V स्क्वायर बटा RG। डायमेंशन जब हम इनके निकालते हैं M0, L0, T0, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज इनएक्यूरेट। Method of the dimension fills in the case of the exponential trigonometric logarithmic equation like method also fills if a particular physical quantity depends on the more than 3 unknown factors, ठीक है। तो दिस इज टोटल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। बस जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।